So I will the sessions will be on the dates I will tell, like Monday, Wednesday, uh, Friday and Sunday. Okay. These 4 days I will take the sessions and 7:30 to 9. So most I will try to solve as many questions such that your concepts will be clear, and any new question I will try to develop the problem solving skills such that if you will find any new questions you can easily solve. Okay. So I will start with networks basics, KVL and KCL. Okay. So KVL is the sum of voltage in a closed loop equals to zero. Okay. So if I'm teaching, meanwhile you can anywhere, if you are getting doubt, you can stop me and ask question. Okay. So KVL, the definition of the KVL is sum of voltage in any loop equals to zero. So here I have drawn a simple circuit. Okay. What is this? A voltage is connected here. Okay. One second. This is plus minus. One second. This is plus and this is minus. Okay. And here I have connected a resistance. So if we'll write the KVL in this loop, so how we are writing KVL? Let's say this is plus and this is minus. So we are starting from here. So minus V, okay, minus V plus I into R. This should be equal to zero. Okay. So this is the KVL of this loop. From this equation, we can write that I is equal to V by R. So this definition we have to remember, and KCL is Kirchhoff's current law. So that is like incoming current to a node should be equal to the outgoing current. Okay. But here if we'll see the easy definition I have written, this we should follow. So if we are following this definition, then we can easily solve any KCL equation. Okay. So what is the definition? Sum of outgoing current from any node that should be equal to zero. Okay. So here I have drawn some lines. So this is node N, and outgoing current here is I1, here is I2, and this is I3, and this is I4. So what will be the KCL equation here? I1 plus I2 plus I3 plus I4 is equal to 0. Is it clear, this definition? Okay. So can anyone tell what will be the KCL equation for this network? I have drawn a random network here. This is node N. What will be the KCL equation for this node? Already I have written the definition here. Sum of outgoing current from any node should be equal to 0. So the first case here, the node is N and outgoing currents are I1, I2, I3 and I4. So according to the definition, the sum of current should be equal to 0. So basically the definition is incoming current should be equal to outgoing current. This is also the same thing in other way. So better way to follow this, sum of outgoing current from any node that should be equal to 0. Okay. So can anyone tell what will be the KCL equation for this circuit? Anyone can answer? If you have doubt, you can ask also. Can anyone tell what will be the KCL equation here for second circuit? Can anyone reply? So I'm going to write. You can just see. See here, I1 is entering, I5 is entering, I2 is outside, I3 is outside, and I4 is outside. Okay. So if the current in this direction is I1, what will be the outgoing current for this one? For this section, if I1 is entering, means minus I1 is outgoing, correct? Similarly here, if I5 is entering, what will be the outgoing current? Outgoing current will be minus I5. So what will be the KCL equation here? I2 plus I3 plus I4, okay, and minus I5 minus I1 equal to 0. So same thing I have followed here. Sum of outgoing current from any node that should be equal to 0. So here outgoing is I2, here I3, here I4, and what will be the outgoing current here? Since entering is I5, so outgoing will be minus I5. Here also since entering is I1, so outgoing will be minus I1. Is it clear to all?
You can ask. Is it clear up to now? Can anyone reply? Am I audible? Yes, sir. Okay. Clear. Okay. Okay. So, some concepts I'm going to tell. So this is also a very good concept. Maybe in I think I have seen some university question also. So they are asking concepts, questions, numerical questions related to it. Okay. So how we can write the power delivered or power absorbed? Okay. So we should follow this convention. English is okay, or I should teach in Hindi? Is it okay? Hello. Can you tell? Is it clear up to now? Hello. Yes, sir. Okay, okay. So how we can find the power delivered? Okay. So if the current is leaving the positive side, anything is there, any element is there. If current is leaving the positive side, and this is the current direction, then power delivered equal to V into I. Okay. And what will be the power absorbed? That will be negative of this one. So that will be minus V into I. Similarly, if current is leaving the minus terminal, okay. So if current is leaving the minus terminal, what will be the power delivered? So that will be minus Vi. Okay. Same thing here. We will, if you will follow this conventions, if you will see the plus terminal, so plus terminal, what will be the current? Current will be minus I. Okay. So power delivered will be minus Vi, and power absorbed will be just negative of that. So that will be Vi. Okay. See, we should follow this convention. We'll see the plus sign. If the current is leaving that terminal, it means that the power delivered will be V into I. And what will be the power absorbed by this component? That will be just negative of this one. Similarly, here in this circuit, if you can see, the current direction, actual current direction is leaving the minus terminal. It means what will be the current in this direction? That will be minus of I. So if we follow this convention, so power delivered will be minus I into plus V. So that will be minus Vi, and power absorbed will be plus Vi. Is it clear? If you solve some numerical, then it will be more clear. Is it clear up to now? Sir, can you teach bilingual, sir? ओके ओके Uh, ओके 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 तो सी यहाँ पे क्या है कि एक कोई भी ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर करंट इधर से आउट में जा रहा है, ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? बी इंटू आई। और इस केस के लिए पावर अब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू आई। क्लियर? सो ये हम लोग को याद करना है, रखना है। जैसे मान के चलो कि हम लोग के पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ना, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और ये क्या कर रहा है? 1 एम्पियर करंट ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 वाट हो जाएगा, है ना। वहीं पे अगर पावर एब्जॉर्ब अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो जस्ट इसका निगेटिव, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 वाट, एंड पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? -5 वाट निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब पर्पस यही है कि क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व होना चाहिए, है ना। टारगेट मेरा यही है कि आप लोग अगर सेशन अटेंड कर रहे हो तो कैसा भी, कितना भी टफ से टफ नेटवर्क का क्वेश्चन सामने आए, डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। मेरा टारगेट यही है, ठीक है। किसी तो हम लोग को ये कन्वेंशन याद रखना है। जैसे अगर एक यही चीज याद रखना है, अगर प्लस से करंट निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? हम लोग का पावर डिलीवर्ड V इंटू आई हो जाएगा, और पावर ऑब्जर्व माइनस V इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। उसी हम क्या किए, यहाँ पे एक दूसरा सर्किट ड्रॉ किए। इसमें हम क्या किए कि यहाँ पे हम आई क्या हो रहा है? माइनस को लीव कर रहा है ना। तो अगर आई, ये आई का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर आई करंट जा रहा है, तो दूसरे डायरेक्शन में अगर करंट हम देखेंगे तो कितना जाएगा? माइनस आई जाएगा।
ये क्लियर है? ये माइनस आई हम क्यों लिखे हैं? एक्चुअल में मेरा इधर करंट ये जा रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपका सर्किट हो गया, ठीक है, इधर हमारा 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू कितना होगा? आई इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ दिस वन, ठीक है। जब इधर 1 जा रहा है तो इधर क्या जाएगा हमारा? -1 जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? हेलो, इज इट क्लियर अप टू नाउ? यस सर, क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ज्यादा थोड़ा क्लियरिटी आएगा इसमें, है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू क्या होगा? अभी हमने क्या बताया था, केसीएल बताया था ना। केसीएल क्या होता है? सारे आउट गोइंग करंट हम लोग किसी भी ब्रांच में, जैसे यहाँ पे I1, I2, I3 और I4 चार बाहर की तरफ जा रहा है, तो चारों का समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर एक ब्लैक बॉक्स रखते हैं हम, मान के चलो कि एक बॉक्स है हम लोगों के पास, बॉक्स के अंदर में कुछ भी सर्किट है उससे मतलब नहीं है, 2 वायर अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और 2 वायर बाहर आ रहे हैं ऐसे। तो इसमें अगर I1 जा रहा है, इसमें इसमें बाहर I1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर I2 जा रहा है, और यहाँ से I3 जा रहा है, और यहाँ से कितना जा रहा है? I4 जा रहा है। तब भी हम लोग का क्या होगा? यहाँ भी हम लोग का केसीएल, क्योंकि अंदर कुछ भी हो रहा है, लेकिन जितना ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो सबका समेशन क्या होना चाहिए हम लोग का? 0 होना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सेम चीज को इस सर्किट में अप्लाई करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले सेक्शन को क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमारा करंट इंटर हो रहा है, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, बाहर भी क्या उतना ही जाना चाहिए, इस मीडियम से होके जा रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ये कितना है? 2 एम्पियर यहाँ इंटर हो रहा है, ठीक है, +2, और आउटपुट में कितना जा रहा है? 8 प्लस 5। क्लियर है? तो इक्वल टू कितना होना चाहिए हम लोगों का? इक्वल टू कितना होना चाहिए? 8 प्लस 5। ये क्लियर है सबको? ये इक्वेशन क्या किए, एंट्री कितना जा रहा है इसमें? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ये कितना, 2 भी इसमें एंट्री जा रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2, आउट कितना जा रहा है? 8 प्लस 5, है ना। तो कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 हो गया हम लोग का। सर एंट्री में सर निगेटिव ना होता है सर? एक सेकेंड, अच्छा अभी जो पहले बताए थे, केसीएल क्या होता है? 2 होता है। जैसे हमने क्या बताया कि आउटगोइंग करंट का समेशन 0 करना है, ठीक है। आउटगोइंग करंट का समेशन क्या करना है? 0 कर देना है। तो यहाँ पे अगर एंट्री में आ रहा है हम लोग करंट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर आउट के तरफ देखते हैं, तो इसको क्या देखेंगे? आउट में कितना जा रहा है? -1 जा रहा है। आउट में कितना जा रहा है? -2 जा रहा है। आउट में कितना जाएगा यहाँ पे? -I3 जाएगा। क्लियर है? जब भी एक तरफ करंट जा रहा है, तो उसके अपोजिट में कितना जाएगा? माइनस जाएगा। ये वाला क्लियर है ना, क्यों हो रहा है माइनस? जी सर। हाँ, तो आउटगोइंग हम यहाँ पे आउटगोइंग कर दिए सारे को, ठीक है। यहाँ पे अंदर दो जा रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? बाहर कितना जाएगा? -2 जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, सारे को जोड़ के समेशन कितना कर देना है? 0 कर देना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? -I1 -I2 -I3 -2 +8 +5, ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? क्या किए हम, इसको ब्लैक बॉक्स कंसीडर कर लिए हैं, और जितने भी आउटगोइंग करंट जा रहे हैं, सारे के समेशन को क्या कर दिया? इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे जैसे 2 अंदर जा रहा था, तो बाहर कितना जाएगा? -2 जाएगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन को अगर ये करेंगे, इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 - 2 11। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू कितना आ गया?
11 आ गया। क्लियर है सबको इतना? किसी को डाउट है? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? तो इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं हम। क्यों बताएं वो मेथड? क्योंकि वो सिंपल रहता है। जो बड़ा नेटवर्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ से एंट्रिंग जा रहा है, कहाँ से आउट जा रहा है। तो बेस्ट वे क्या है? सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू जीरो। ये मेथड लगाने से क्या होगा? गलती का चांस कम हो जाएगा क्वेश्चन में। केसीएल होता क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो अभी हम क्या किए थे? सम ऑफ आउटगोइंग करंट को ऐड करके जीरो कर दिए थे। दूसरा चीज क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस वाले बॉक्स में इनकमिंग कितना हो रहा है हम लोग का? I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो रहा है? इन हो रहा है। और दो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? इन हो रहा है। तो इन वाला हम एक तरफ लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2 इनकमिंग करंट हो गया। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोगों का? आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग कितना है? 8 प्लस 5 13। क्लियर है? तो यहां से भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सेम चीज होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 13 माइनस 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर। ओके। तो अभी आप लोग बताइए कि जो 5 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, 5 वोल्ट का सोर्स है, कितना पावर डिलीवर करेगा? अभी हमने कंसेप्ट बताया है थोड़ा देर पहले। पावर डिलीवर का कंसेप्ट क्या होता है? उसके पॉजिटिव टर्मिनल का हम लोग करंट देखते हैं। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स है ना, एक V है। अगर यहाँ से अगर I जा रहा है तो इसके द्वारा पावर डिलीवर कितना हो जाएगा? V इंटू आई। ठीक है, तो 5 वोल्ट का जो सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा? इसमें कितना करंट जाएगा 5 वोल्ट में? सिंपल है। यहाँ से कितना आ रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग का कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, और 11 में से यहाँ पे कितना जा रहा है? 1 एम्पियर इधर जा रहा है। तो इसमें कितना जाएगा? 10 जाएगा। यहाँ पे 5 वोल्ट वाले सोर्स में कितना करंट जाएगा? 10। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड हम लोग का कितना हो जाएगा? 5 इंटू माइनस 10। माइनस हम 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि करंट आउटसाइड, जैसे कोई भी वोल्टेज सोर्स है, इसका आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पावर डिलीवर्ड इतना करेगा, है ना। तो 5 इंटू हम क्या कर दिए? माइनस 10। तो कितना हो गया? माइनस 50 वाट। क्लियर है? हेलो, किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, जी सर। ओके। जी तो आप सर। लोग बताइए कि जो 1 एम्पियर का हम लोग का करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ये कितना पावर डिलीवर करेगा? 1 एम्पियर का सोर्स है, वो कितना पावर डिलीवर करेगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट एक लाइन का आंसर है। क्या करेंगे हम लोग? इसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कितना वोल्टेज, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, यानी कि 1 एम्पियर का जो करंट है हम लोगों का, ठीक है, करंट सोर्स है हम लोगों का, इसके प्लस और माइनस में कितना है? माइनस 5 वोल्ट है। यानी कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। सही है? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है हम लोग का कितना आ रहा है? -5 वोल्ट आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर कितना हो जाएगा? -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? सर -5। -5 कैसे आएगा सर? देखो यहाँ पे ये जो सर्क्यूट है ना हम लोगों का, ये यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे। ये कितना है? 5 वोल्ट का सोर्स है। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसको। जैसे ये माइनस था, ये प्लस था। 5 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए V। करंट का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर है। ठीक है, इधर 3 ब्रांच लगा हुआ था और इधर भी 3 ब्रांच लगा हुआ था। उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। हम लोग को चाहिए क्या? ये वोल्टेज चाहिए कि करंट सोर्स जहाँ से करंट ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका इसका वोल्टेज क्या है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले लूप में क्या करेंगे? छोटे वाले लूप में KVL लगा देंगे।
तो केवीएल कैसे लगाएंगे, यहां से हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस भी इधर से जा रहे हैं और फिर इधर से आ रहे हैं, ठीक है। केवीएल कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे रोटेट करके इधर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस भी, और ये माइनस आ रहा है ना, -5 इज इक्वल टू 0। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में आया। केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ प्लस सर एक और बार यहाँ, केबीएल बताइए ना सर, ये मतलब समझ में नहीं आता ठीक है। केबीएल कैसे लगाते केवीएल हैं। क्या होता है ना, जैसे ये हम लोग का क्लोज लूप हो गया ना, ये सर्किट को हम दूसरे तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये प्लस और ये माइनस, ये वोल्टेज है इसका 5 वोल्ट, है ना, ऐसे ही कनेक्ट हुआ है हम लोगों का। और दूसरा क्या है, करंट सोर्स जो है ऐसे कनेक्ट हुआ है 1 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। इसी सर्किट को हम स्क्वायर जैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी पॉइंट हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये वाला सर्किट सेम है ना, क्लियर है ना, ये वाला यहाँ से कैसे किए। अब इसको हम क्या वोल्टेज है, जो हमको क्या वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, वी चाहिए हमको, कि करंट सोर्स के अक्रॉस का कितना वोल्टेज है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसी लूप में केवीएल लगा रहे हैं। केवीएल का मतलब क्या होता है, हम लोग तो वैसे जो भी पहले मार्किंग दे देते हैं हम लोग, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, रास्ते में माइनस भी मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे हम चल रहे हैं इस लूप में, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है, तो माइनस भी -5 इक्वल टू 0। क्लियर है। हेलो, समझ में आया कैसे हुआ। जैसे ये लूप है ना हम लोगों का, तो लूप में जो वोल्टेज का समेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस क्यों लेते हैं सर, कहाँ पे माइनस, माइनस भी क्यों लिए। जहां से जिस साइन से हम लोग गुजरेंगे ना, दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। हम ये वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो जिस साइन से गुजर रहे हैं उसी साइन को कंसीडर करना है। ऐसे इधर से चल रहे हैं तो हमको पहले माइनस मिल रहा है, तो माइनस भी ले लिए। फिर इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस मिल रहा है तो -5 ले लिए, ठीक है। हम लोग अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हैं, जो रहता है उसका, लेकिन ये बेस्ट रहता है। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, जो साइन पहले दिख रहा है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, हमको माइनस पहले दिख रहा है तो माइनस भी ले लिए, ठीक है। फिर इधर से गए, इधर से गए, यहाँ पे कितना मिल रहा है, -5 मिल रहा है, तो इसको -5 ले लिए। तो हम लोग का केवीएल इक्वेशन क्या हो गया, माइनस भी -5 इक्वल टू 0। अभी क्लियर है। देखो ये साइन कन्वेंशन याद रखना होगा, ठीक है। अभी कुछ समझ में आया। जी सर। सिंपल है। तो यही जितने भी नेटवर्क के क्वेश्चन रहेंगे, आप केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम ऐसे ही रैंडम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ऐसे मान के चलो कि कोई नेटवर्क दिया हुआ है, 5 वोल्ट हो गया हम लोग का वोल्टेज, ये रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम मान के चलो आप, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, ठीक है। और इधर भी कुछ सर्किट हम लोग का है, इसको इग्नोर करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि करंट वेरिएबल दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ पे I1 दिया हुआ है, इस वाले में कितना दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, इस वाले में कितना दिया हुआ है, 2 ओम वाले में I2 दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है कि इस वाले लूप में केवीएल लिखना है, ठीक है। तो मेथड क्या फॉलो करना है, जहां भी रेसिस्टेंस में करंट इंटर कर रहा है ना, उसको प्लस एज्यूम करना है, ठीक है। जहां एग्जिट करना है उसको क्या एज्यूम करना है, माइनस एज्यूम करना है। यहाँ भी इंटर कर रहा है उसको प्लस एज्यूम करना है, इसको माइनस एज्यूम करना है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई आर होता है ना, आई इंटू आर होता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, केवीएल लिखने जा रहे हैं इस लूप में, इस लूप में। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस, यहाँ प्लस आ गया, +1 इंटू I1, तो 1 इंटू I1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 रेसिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। तो ये वोल्टेज का समेशन जो होता है ना, उसको 0 करना होता है, ठीक है। लूप में जितना भी हम लोग का वोल्टेज आ रहा है उसका समेशन क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं, है ना। स्टार्ट कभी भी, हाँ, मेथड ऐसे करना है कि रेसिस्टेंस में जो भी करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो करंट के डायरेक्शन के इंटरिंग वाले साइड को प्लस मानना है, आउट वाले साइड को क्या मानना है, माइनस मानना है। यहाँ भी इंटरिंग जहां भी रहेगा तो पहले स्टेप 1 में ए करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी साइन आते जाएगा ना उसी को लिखते जाना। जैसे यहाँ माइनस आ रहा है तो हम क्या लिख दिए, -5। यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इंटू आई। आर हम लोग का कितना है, 1 ओम है, ठीक है। तो 1 इंटू I1, फिर इसमें वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम में कितना हो जाएगा, 2 इंटू I2। क्लियर है अभी केवीएल क्या होता है, सबको जी समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, आ रहा है समझ में। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो केवीएल के सेल थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। हम्म तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को Vx का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतने सारे हम लोग ये दिए हुए हैं, अलग अलग नोड के वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है। इसका V2 दिया हुआ है, इसका V1 दिया हुआ है, इसका 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर रिफरेंस दिया हुआ है तो रिफरेंस का मतलब क्या हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है। अगर रेफरेंस दिया हुआ है तो उसी के कंपेयर में वोल्टेज हम लोग, जैसे 0 वोल्ट से ही किसी चीज का वोल्टेज होता है, जैसे माने कि ये 0.0 वोल्ट पे है और ये 0.5 वोल्ट पे है, ठीक है। तो जीरो से ही उसको रिफरेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जीरो नहीं दिया रहेगा ना तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग अलग से एक रिफरेंस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सर्किट में ही ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो हम लोग का रिफरेंस क्या हो जाएगा, यही रिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो ये रिफरेंस हो जाएगा। तो तो रिफरेंस का मतलब है कि ये इस पॉइंट का वोल्टेज 20 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्चुअल वोल्टेज इस दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ये सर्किट में नहीं है, हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक प्लस एक माइनस, ठीक है। हम कनेक्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट 0 है हमारा, तो 0 से यहाँ तक चल रहे हैं तो हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 20 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आया कैसे हम बोल रहे हैं। मान के चलो कि एक्स पॉइंट को हम 0 वोल्ट बोल रहे हैं और वाई पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, 20 वोल्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक वर्चुअल सोर्स कनेक्टेड है दोनों के बीच में 20 वोल्ट का। तभी तो हम अगर यहां से देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। जीरो से ही वोल्टेज देखते हैं ना, मान के चलो कि 0 है और इसका वोल्टेज 20 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हाइपोथेटिकली एक हम क्या किए, 20 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाला समझ में आया क्यों किए हैं हम। एक्चुअली ये सर्किट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कनेक्ट कर दिए। समझ में आया ये वाला कैसे हुआ। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक दो तीन बार और बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन क्या था, एक बार इसको डिलीट करते हैं फिर से। क्वेश्चन हम लोग का ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का कितना है, 0 वोल्ट है और ये कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। 20 वोल्ट का मतलब क्या है कि हम लोग का 0 से ये 20 वोल्ट है, 0 के रिस्पेक्ट में ये कितना है, 20 वोल्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है और इसके बीच का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। समझ में आया, ऐसे समझ में आ रहा है। अगर तो डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो, जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग का क्या करना है ना कि हाइपोथेटिकल वोल्टेज का कनेक्ट करना है, उसका मीनिंग सेम ही होगा। अगर हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मान के चलो +-20, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से यहाँ का बीच का वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लूप में क्या कर देंगे, केवीएल लिख देंगे, ठीक है। तो केवीएल हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, -20, ठीक है। इधर से चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -20, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, -5, फिर इधर जा रहे हैं तो ये क्या, +Vx, तो क्या हो जाएगा, +Vx हो जाएगा। और फिर इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, -10, -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का इस लूप का केवीएल इक्वेशन। क्लियर है। तो जब भी ऐसा नोड वाला क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों का,
तो क्या करना है, अगर रिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस रिफरेंस से किसी नोड के बीच का, जैसे हमको यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज हम कनेक्ट कर देते V1 वोल्ट का। इसका मतलब यही हुआ कि इस पॉइंट पे वोल्टेज अगर V1 है तो ग्राउंड से उसके बीच में क्या कनेक्ट है, एक हाइपोथेटिकल V1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन उधर का जरूरत नहीं था, इधर का हम इस साइड का कैलकुलेट करना था। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ के बीच में एक 20 वोल्ट का हाइपोथेटिकल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिए और इस वाले लूप में क्या किए, केवीएल लिख दिए, ठीक है। तो इधर से हम चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -20 मिल रहा है इस वाले लूप में। फिर ये 5 वोल्ट का ये माइनस और प्लस है, ये बड़े वाले को प्लस सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो -5 और यहाँ प्लस मिल रहा है तो प्लस Vx। फिर यहाँ क्या मिल रहा है, -10 इज इक्वल टू 0। ये केवीएल इक्वेशन क्लियर है सबको? हेलो। यस सर, तो यस सर क्लियर। Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा Vx का वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 + 5 + 10 कितना हो गया, 35। सो Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, जब भी इस तरह का नोड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, जो भी नोड का वोल्टेज रहेगा उसके बीच में एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है। एक्चुअल में सोर्स नहीं है, जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल सॉल्व करके इसका फाइनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एक सेम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, रेफरेंस नहीं दिया हो तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस एज्यूम कर रहे हैं, एक ग्राउंड क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। अब सारा वोल्टेज जो रहता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रहता है, तो यहाँ 20 वोल्टेज नोड का वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड से इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे कितना होगा, ये 30 वोल्ट है तो यहाँ से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना कनेक्ट होगा, हाइपोथेटिकल वोल्टेज 30 वोल्ट, ओके। अभी हम लोग को Vx कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इस वाले लूप में हम लोग केवीएल लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, -20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -20 और यहां से चलते जा रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, -5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस Vx और ये क्या हो जाएगा, -10 और ये कितना हो जाएगा, +30 इक्वल टू 0। क्लियर है ये वाला इक्वेशन सबको? हेलो। यस सर। ये रूल आप लोग को याद रखना है, अगर रेफरेंस दिया हुआ है तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग हाइपोथेटिकल कनेक्ट करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग खुद से जीरो रेफरेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ से हाइपोथेटिकल वोल्टेज हम लोग करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, केवीएल लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका फाइनल वैल्यू, Vx इज इक्वल 5 टू कितना हो रहा है, 20 + 35, तो 35 - 30 कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। अभी तक जितना एक्सप्लेन किया सबको समझ में आ गया है? अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सारे लोग इसमें सीएससी के ही हैं जो ज्वाइन किए हैं, या कोई ट्रिपली से भी है कोई? हेलो, ओके। बीटेक। ट्रिपली का भी है क्या, कोई ज्वाइन किया हुआ है ट्रिपली ब्रांच का? ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आई थिंक। तो इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इससे थोड़ा नोडल ज्यादा और क्लियर होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा नोडल में क्लियरिटी आएगा। इसमें हम लोग करना क्या है, 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है ना, इसके द्वारा कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना होगा, इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। अगर V वोल्टेज है तो कितना पावर डिलीवर करेगा ये, 2 × V, है ना। तो V वोल्टेज कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, दोनों मेथड से हम इसको बताते हैं, नोडल और केवीएल दोनों से करते हैं, ठीक है। तो अभी ये ग्राउंड इसको एज्यूम कर रहे हैं हम, है ना। अगर ये ग्राउंड है तो इस पॉइंट का वोल्टेज कोई बताएगा कितना होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? अभी हमने एक्सप्लेन किया है कैसे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है क्या?
ठीक है, एक डायरेक्ट हम बताते हैं। यहाँ से अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से चल रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है और फिर +1 मिल रहा है। तो इस पॉइंट का यहाँ पे -1 +1 वोल्टेज है, फिर -1, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज हम लोग का कितना हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 वोल्ट हो जाएगा। अभी हाइपोथेटिकल जो हमने सोर्स कनेक्ट करने का बोला था, तो उसको मान के चलते हैं कि यहाँ का वोल्टेज हम लोग का कितना है, V है। ठीक है, यहाँ का हम वोल्टेज क्या एज्यूम कर लिए, V एज्यूम कर लिए। तो अगर V एज्यूम किए, इसका मतलब क्या है, एक हम लोग हाइपोथेटिकल V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, है ना। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो लूप है ना, यहाँ से लेके रेड वाला जो लाइन जा रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, +1, और यहाँ पे ये क्या मिलेगा, +V = 0। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है सबको ये। क्लियरली हम लोग ऐसे मतलब विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को अगर हम 0 माने हुए हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर 0 माने हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट हो जाएगा, फिर 1, और ये निगेटिव में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 0। तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। इसका और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है, हेलो, सबको समझ में आ रहा है कैसे, नो जीरो सर। जीरो जीरो ये समझ में आ गया ना सबको, जीरो कैसे हो रहा है यहाँ पे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया वोल्टेज। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, तो ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितना हम एज्यूम किए हैं, V एज्यूम किए हैं। ठीक है, और केसीएल हमने क्या बताया था, केसीएल का रूल, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले नोड पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, इस नोड पे केसीएल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का करंट, इस डायरेक्शन का करंट और इस डायरेक्शन का करंट, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस 1 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, इसको हम मान रहे हैं I1, इसको मान रहे हैं I2, और इसको क्या मान रहे हैं, I3। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, I1 + I2 + I3 = 0, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, I1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट है। अगर ग्राउंड से हम देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो कितना वोल्टेज हमको दिखेगा, ये ग्राउंड है और ये दूसरा पॉइंट है, बीच में कितना 1 वोल्ट कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका करंट I1 क्या हो जाएगा, V - 1/1, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ का, V - 1। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 = V - 1 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 1। ठीक है, उसी तरह I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये V - 0, I2 = V - 0 डिवाइडेड बाई 1। ये I1 I2 का वैल्यू क्लियर है सबको। क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, I = V/R। ठीक है, तो एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक साइड में वोल्टेज V है, दूसरे साइड में वोल्टेज 1 है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, V - 1 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, किसी को डाउट यस। है। हाँ, तो अभी हम क्या किए, I1 I2 कैलकुलेट कर दिए, तो अब यहाँ पे केसीएल लगा देंगे, है ना। केसीएल क्या हो गया आपका, I1 + I2, तो I1 क्या है, V1 - 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, I2 क्या है, V - 0/1। I3 हम लोग का कितना हो जाएगा, कोई बताएगा I3 का वैल्यू क्या होगा, I3 क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में 2 जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना जा रहा होगा, बताइए आप लोग। माइनस। हाँ, -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग का तीसरा I3 कितना हो जाएगा, +- 2 = 0। तो हम लोग क्या हो जाएगा, V - 1 + V - 2 = 0। ये हम लोग का क्या हो गया, केवीएल इक्वेशन हो गया, है ना। कितना हो गया, V - 1 + V - 2,
दिस इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि वोल्टेज हम लोग का कितना हो गया v इज इक्वल टू 3/2 कितना हो गया 1.5 वोल्ट, है ना। v कितना हो गया 1.5 वोल्ट। अभी पावर डिलीवर्ड कितना होगा, कोई बताएगा, पावर डिलीवर्ड बाई 2 एम्पियर सोर्स। हम वोल्टेज, ये वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए, कितना आया वोल्टेज 1.5 वोल्ट। सो P डिलीवर्ड बाई 2 एम्पियर कितना होगा, ऑलरेडी अभी हम एक्सप्लेन किए हैं, कितना होगा पावर 3 इस, सर। हाँ, तो 1.5 इंटू 2 3 वाट हो गया। क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन पे चले, किसी को डाउट हो तो सर एक आपको, बार I1 I2 बता दिए कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है। देखो तो होता क्या है, कोई भी हम लोग का रेसिस्टेंस है, ठीक है, मान के चलो कि एक रेसिस्टेंस है R है, और यहाँ का वोल्टेज V1 है, और यहाँ का वोल्टेज V2 है, ठीक है। तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये मान के चले I है, तो I इज इक्वल I1 मान लें, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। ये समझ में आ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, दिस माइनस दिस। अगर हम लोग को इस डायरेक्शन में करंट पता करना होता तो क्या होता, तो वो हो जाता V2 माइनस V1 बाई R। ये क्लियर है कैसे, ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, जैसे इस डायरेक्शन में अगर करंट हम लोग को निकालना है तो उसका वोल्टेज लेते हैं, फिर दूसरे साइड का वोल्टेज यानी कि V1 माइनस V2 बाई R हो गया। ये यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ओके। सर वो डायरेक्शन इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? फिर से पूछिए एक बार, कौन सा डायरेक्शन, देखिए सर वो डायरेक्शन, रेसिस्टेंस के एक कौन से क्रॉस निकाल रहे करंट, जैसे आप बताए ना V1 से V2 के तरफ निकाल रहे हैं, अगर वही V2 से V1 के थ्रू तो उसका निकालते हैं उसका तो निगेटिव हो दोनों जाएगा, से उसका निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखो मान अभी वो हम लोग एक किए, जैसे इधर 2 एम्पियर जा रहा है, एक मान के चल रहा है 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो इसका निगेटिव हो जाएगा, इधर कितना जाएगा हम लोग का -2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। एक लाइन में अगर इधर करंट जा रहा है हम लोग का, इधर x जा रहा है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कितना जाएगा, -x जाएगा, है ना, इधर कितना जाएगा -x। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। अगर इधर 2 जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लोग क्या बोलेंगे, इधर तो -2 ही होगा ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा -2 जाएगा, -2 इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर 2 जा रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये क्लियर है ये वाला, हेलो। उसी तरह इसका देखते हैं हम लोग, तो इसका I1 क्या हो जाएगा, मान के चले हम इधर I2 जा रहा है, इधर I1 जा रहा है, तो I1 हम क्या कैलकुलेट किए, V1 माइनस V2 बाई R। I2 क्या हो जाएगा हम लोग का V2 माइनस V1 बाई R। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू माइनस I2 बोल सकते हैं। क्लियर है, एक दूसरे का निगेटिव रहेगा ना। जैसे मान के चलो एक डेटा से ही एग्जांपल लेते हैं कुछ, एक सेकेंड। जैसे मान के चलो कि हम लोग का रेसिस्टेंस है 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 10 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट है ना। तो इसमें अगर इधर हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, इस डायरेक्शन में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5/1 हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई आर, 5 हो जाएगा सर। तो 5 हो गया। लेकिन कोई पूछेगा कि इस डायरेक्शन में कितना करंट जा रहा है, तो ये क्या है हम लोग का I2 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखें तो जिस तरह का वोल्टेज लेंगे उसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम जिस डायरेक्शन, ठीक है, अपने एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिया जाता है। जैसे मान के चलो कि आप कुछ भी एक डायरेक्शन एज्यूम करके सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आपका मान के चलो कि एक सर्किट है, एक रेसिस्टेंस है, उसने आपने ये डायरेक्शन माना आई का, और आपने सॉल्व किया तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर आ गया -1, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली वो सॉल्व होने के बाद जो करंट आ रहा है -1, यानी कि एक्चुअल में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग कोई भी सर्किट सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, अपने हिसाब से डायरेक्शन मान लेंगे आई और वी का, ठीक है। लेकिन अगर वो आई हमारा निगेटिव आता है सॉल्व करने के बाद, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि हमने आई का डायरेक्शन तो ये माना था, लेकिन सॉल्व करने के बाद अगर आई -1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो डायरेक्शन हम लोग मान लेंगे, सॉल्व करने के पहले डायरेक्शन लेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो अब यहाँ ये वाला तो फाइनल हो गया 3 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, किसी को डाउट है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन में आप लोग बताइए, इसमें हम लोग को क्या करना है। P1, एक सेकंड, जितने भी एलिमेंट है सारे कितने पावर डिलीवर्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सारे ब्लैक बॉक्स, कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, कुछ डिपेंडेंट सोर्स दिए हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, P1 डिलीवर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, P2 डिलीवर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, P3 डिलीवर्ड है, ऑब्जर्व है, अब P4 क्या है, डिलीवर्ड है। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो P1 हम लोग का क्या है, यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है, और करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो P डिलीवर्ड, ये डिलीवर करेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, 100 वाट। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट, हाँ पूछिए। हेलो, हेलो, ठीक है, तो ये 20 वोल्ट का जो सोर्स है कितना पावर डिलीवर करेगा, हमने क्या बताया था स्टेप, क्या हम लोग को करना है, कोई भी रहेगा तो प्लस माइनस अगर भी है और इस डायरेक्शन में अगर करंट आई जा रहा है तो ये कितना डिलीवर कर रहा है, V इंटू आई। अगर आई इस डायरेक्शन में जाता तो क्या होता, अगर माइनस डिलीवर कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो प्लस ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, ये वाला जो P1 है 100 वाट डिलीवर कर रहा है, तो ऑब्जर्व कितना कर रहा है, P20 ऑब्जर्व कितना होगा। अगर 100 डिलीवर कर रहा है इसका मतलब क्या है, -100 ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पावर ऑब्जर्व बाय P1, P1 हम लोग का क्या कर रहा है, 100 वाट डिलीवर कर रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व पूछ दिया 100 वाट डिलीवर कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्व कितना कर रहा है, -100 वाट। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? अभी दूसरा देखते हैं, दूसरे में हम लोग का कितना है, यहाँ प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग डिलीवर्ड निकालना चाहें, इस वाले का हम लोग डिलीवर्ड निकालना चाहें, तो हमने क्या बताया है, ऐसे करना है और प्लस से करंट को बाहर की तरफ करना है। ठीक है, तो हम P2 यहाँ पे रख दिए। ठीक है, P2 है और यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 12 वोल्ट है, और इनसाइड में 5 जा रहा है। इनसाइड अगर 5 जा रहा है तो आउटसाइड कितना जाएगा, -5 जाएगा। तो करना क्या है, पहले प्लस माइनस देखना है, प्लस से हम लोग को क्या करना है, करंट को आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिलीवर्ड निकालने के लिए ऐसा करना है हम लोग को। ठीक है, तो करंट एंट्री पे 5 जा रहा है तो आउट में कितना जाएगा, -5 जाएगा। तो P डिलीवर्ड कितना हो जाएगा इसका, 12 इंटू -5, -60 वाट। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, P ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, 60 वाट। यानी कि हम लोग का क्या कर रहे हैं, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, उसका निगेटिव कर रहा है वो। ठीक है, सर वहाँ साइन को नहीं लिखना है क्या, -60 वाट्स ऑफ पावर एब्जॉर्ब में। हाँ ये अब्जॉर्ब करेगा, -60 आ रहा है यानी कि -60 डिलीवर कर रहा है वो। ठीक है, देखो एक ही कन्वेंशन याद रखना है, हम लोग कोई भी एलिमेंट रहेगा क्या करेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, और प्लस से हम लोग क्या करेंगे, करंट को बाहर करेंगे। ठीक है, तो जो भी ये V इंटू आई रहेगा ना, ये V हो गया, I हो गया, तो पावर डिलीवर्ड हम लोग का क्या कितना हो जाएगा, V इंटू आई। इतना ही याद रखना है। ठीक है, चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। मान के चलो कि अगर हम लोग का करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स का बता दिए, मान के चलो कि अगर करंट सोर्स है तो क्या होगा, तो अगर करंट सोर्स है तो उसको ऐसे हम डायरेक्शन ले लिए I। ठीक है, और I के अक्रॉस हम क्या एज्यूम करेंगे, प्लस माइनस V। ये I हो गया हम लोग का करंट सोर्स और प्लस माइनस V। ठीक है,
तो ये एज्यूम कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये क्या देगा हम लोग का, डिलीवर्ड देगा, है ना। अगर प्लस डायरेक्शन से करंट आउट जा रहा है, यहाँ भी प्लस डायरेक्शन से करंट आउट जा रहा है, तो ये हम लोग का क्या देगा, एक्चुअल में डिलीवर्ड देगा। लेकिन अगर हम लोग का पी डिलीवर्ड अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? तो इसी रूल को यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या किए हम, ऑलरेडी करंट का डायरेक्टर उधर ही था, तो क्या किए 20 × 5 किए तो कितना हो गया, 100 वाट क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। तो ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व इसका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब P2 में देख रहे हैं, तो P2 में क्या था, यहाँ पे 12 वोल्ट है प्लस माइनस, और 5 इंटरिंग जा रहा है। अगर इंटरिंग 5 है तो आउट कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। अब हम पी डिलीवर्ड निकाले तो कितना हो गया, 12 × -5 -60 वाट, यानी कि -60 अगर डिलीवर्ड आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कितना कर रहा है, 60 वाट ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका भी सेम है, ठीक है। इसका कितना है, P3 वाले का 8 आ रहा है। तो अगर हम 8 में क्या कर रहे हैं, 8 को भी अगर हम आउट गोइंग करंट दिखा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सर कुछ दिख नहीं रहा है सर। स्क्रीन विजुअल नहीं है क्या, 1 सेकेंड। सर विजुअल है सर, नहीं उसका सर, कुछ दिख नहीं रहा। स्लो होगा, नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम है उसका। ओके, एक बार रिफ्रेश कीजिए आप नेट को। बाकी सब लोग को दिख रहा है ना? यस सर, विजुअल है सर। ओके, तो मे भी बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो P3 का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा? P3 कितना होगा, P3 क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा, ऑब्जर्व करेगा? -48। हाँ, इसका अगर डिलीवर्ड निकालेंगे, P3 डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, 6 इधर जा रहे हैं कि आउटगोइंग कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। और P3 डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, P3 डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, -48 वाट हो जाएगा। यानी कि डिलीवर्ड अगर निगेटिव आ रहा है तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो P3 एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, 48 वाट। तो यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम में। एग्जाम में ये देखना है कि डिलीवर्ड पूछ रहा है या ऑब्जर्व पूछ रहा है। डिलीवर्ड के लिए ये वाला कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर उसका निगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, उतना वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? अभी चलते हैं चौथे P4 पे। तो P4 में हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। ऐसे वाले सोर्स को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, इस वाले करंट पे ये सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो अगर I का वैल्यू 5 एम्पियर है तो 0.2 I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे I 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.2 I कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, है ना। अभी P4 का हम लोग देखते हैं, करंट हम लोग का है ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये कितना है हम लोग का, 1 एम्पियर इधर जा रहा है। और वोल्टेज यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस। यहाँ पे वोल्टेज कितना, ये 8 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट सेम ही है ना, तो प्लस माइनस 8 वोल्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट। तो ये हम लोग का प्लस माइनस कितना है, 8 वोल्ट। तो पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, 8 × 1, 8 × 0.2। नहीं, एक सेकेंड, 0.2 I था ना हम लोग का, 0.2 I का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर है। तो 5 × 0.2 कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना था, 0.2 I था, ठीक है। ये कितना हो गया, 0.2 I। तो 0.2 × 5 कितना हो गया, 1 हो गया। 1। और 1 × 8 कितना हो जाएगा, हम लोग का ये करंट सोर्स हो गया। तो आपका 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 वाट हो जाएगा। यानी कि पावर डिलीवर्ड कितना हो गया, 8 वाट हो गया, है ना। और पावर ऑब्जर्व इसके द्वारा कितना हो जाएगा, जस्ट निगेटिव हो जाएगा, -8 वाट। तो डिलीवर्ड ऑब्जर्व का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। -5 से मल्टीप्लाई काहे किए? अच्छा ठीक है, -5 से नहीं किए थे। देखो यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग का कितना है, यहाँ पे I कितना है, 5 है, 5 एम्पियर। 5। और इसको हम लोग कितना, इसको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.2 I दिया हुआ है, ठीक है।
तो जब ये 0.2 आई है तो आई का वैल्यू 5 है, तो हम लोग इसको कितना हाँ लिख सकते हैं? यस सर 0.2 समझ इंटू गया। 5। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो समरी इसका यही है, एक बार और फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे वीडियो हम ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसका इसका आप लोगों को ये करके और पोस्ट भी कर देंगे, बाद में भी आप लोग देख सकते हो, है ना? ओके, तो अभी हमने ये बताया था, कहाँ गया? हाँ, यही चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है? तो कैसे स्टेप क्या डिलीवर्ड का क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग का एलिमेंट रहेगा या वोल्टेज या करंट, तो उसके डायरेक्शन में करंट हम लोग को लेके आना है, ठीक है? और पावर डिलीवर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा? V इंटू आई। जैसे वोल्टेज सोर्स के केस में ऐसा करना है, करंट सोर्स रहेगा तो उसके केस में ऐसे लेके आना है, प्लस और माइनस ये वोल्टेज हम लोग को चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स है तो प्लस को लीव करने वाला करंट चाहिए, ठीक है? और पावर डिलीवर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? V इंटू आई, ठीक है? अगर हम लोग किसी भी सर्किट में ये कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर पावर डिलीवर्ड अगर हम लोग का निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है सबको इतना? यस सर। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है केवीएल केसीएल का, इसको ट्राई करते हैं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे थॉट प्रोसेस बस डेवलप होना चाहिए आप लोगों का, है ना? पूछ रहे हैं आप ही लोगों से, यहाँ पे 4 एम्पियर है, यहाँ पे 10 एम्पियर है, यहाँ पे कितना करंट होगा? कितना करंट होगा, कोई बताएगा? इधर 14 यहाँ 14 एम्पियर हो गया, सही है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो अगर हम लोग को इसका वोल्टेज पता चल जाए और इसके थ्रू अगर करंट पता चल जाए तो हम लोग क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग का 14 एम्पियर आ गया, है ना? और यहाँ से कितना जा रहा है? 6 एम्पियर, करेक्ट? तो इधर कितना जाएगा? इस वाले सेक्शन में किधर जाएगा? इधर जाएगा करंट। कितना करंट जाएगा? 8 एम्पियर जाएगा इधर, सही है ना? इस डायरेक्शन में 8 आएगा, इस डायरेक्शन में 6 आएगा, तभी तो यहाँ पे 14 होगा। यहाँ पे 6 पहले से जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। तो आई का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, कोई बताएगा? आई कितना हो जाएगा? इधर 10 जा रहा है और इधर 8 जा रहा है, तो आई नीचे कितना जाएगा? 2 हो गया। आई कितना हो गया? 2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो? सर यस सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस आई का वैल्यू पता चल गया, अब हम लोग को V चाहिए, तो इसको हम क्या एज्यूम करते हैं? इसके वोल्टेज को हम V एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस V एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो आई का वैल्यू हम लोग का, हाँ, कोई डाउट है क्या किसी को? ओके, तो यहाँ पे कोई बताएगा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का? कितना हो जाएगा? 70 हो गया, प्लस माइनस 70। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। तो ये कितना हो गया? 70 वोल्ट हो गया, ये 16 वोल्ट हो गया, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े वाले लूप में केवीएल लगा रहे हैं। ये जो बड़ा लूप है ना, इसमें केवीएल लगा रहे हैं, है ना? तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये प्लस वाले से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखिएगा साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। इसको हम क्या बोले थे कि जो करंट का डायरेक्शन रहेगा उसको प्लस मानना है रेसिस्टेंस में, ठीक है? तो करंट यहाँ पे कितना जा रहा है? इधर 2 एम्पियर जा रहा है, तो इसको हम क्या मान लिए? प्लस, इसको माइनस, ठीक है? यहाँ 4 इधर आ रहा था तो इसको क्या मान लिए? प्लस, इसको माइनस। यहाँ पे कितना 14 एम्पियर आ रहा था तो इसको प्लस, इसको माइनस, ठीक है? अभी हम क्या रहे हैं? सम ऑफ वोल्टेज कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? V प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, ठीक है? यहाँ पे माइनस प्लस कितना? -16, तो -16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? -70, तो -70 हो जाएगा, प्लस 0। ये सही है केवीएल इक्वेशन? किसी को डाउट है इसमें?
जिसको डाउट होगा आप लोग स्टॉप करके पूछ सकते हो। ये केवीएल इक्वेशन क्लियर है सबको या फिर से एक्सप्लेन करें? हेलो, ठीक है सर। क्लियर है? ओके, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 82 हो जाएगा क्या? ये 12 हो जाएगा प्लस 70, तो v इक्वल टू 82। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू v बाई आई, तो 82/2 कितना हो जाएगा? 41 ओम। क्लियर है सबको? r का वैल्यू 41 ओम। कि देखिए किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि क्लास कर ली और बाद में वैसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना? आर्यन राज, वीडियो इज नॉट विजिबल। वीडियो क्या प्रॉब्लम है क्या? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, आर्यन में भी आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो फिर से, ठीक है? एक बार आप डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करोगे तो हो सकता है फिर सही हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, फिर अगर सबको डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? हेलो, सर इसमें आई का वैल्यू 2 कैसे आया, आर जो निकाले हैं? ठीक है, देखिए वही बोल रहे हैं, जिसको अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो आप लोग स्टॉप कीजिए और पूछिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई का वैल्यू हमने 2 कैसे निकाला, ठीक है? इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ये हम आई यहाँ का यही वाला वैल्यू ना, आई इज इक्वल टू 2 कैसे आया, यही पूछ रहे हो ना आप? अभी देखते जाइए आप एक एक करके। ठीक है, यहाँ से हम लोग का कितना जा रहा है, इधर कितना जा रहा है? 6 एम्पियर का सोर्स है यहाँ पे, ये क्लियर है? और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, तो 4 प्लस 10 कितना आएगा? यहाँ पे इधर 14 आएगा, 14 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस सर, यस सर, यस। यहाँ तक क्लियर है ना? तो यहाँ 14 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है, तो इधर से कितना जाना चाहिए? यहाँ से 8 एम्पियर जाना चाहिए, ये क्लियर है? 8 प्लस 6 14 होगा ना, इधर से 8 जाएगा, इधर से 6 जाएगा, तो इधर कितना जाएगा? 14 हाँ सर, जाएगा। समझ गया सर, समझ गया सर। क्लियर है ना? अब वहीं इधर 8 गया तो इधर कितना जाएगा? 2 चला जाएगा, तब 10 हो जाएगा, है ना? तो ये हम लोग का वोल्टेज कितना आ गया था? फाइनल 82 आ गया था, और तो आर का वैल्यू 41। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डेली हम लोग का, डेली नहीं, वीक में 4 डेज क्लासेज रहेगा, ठीक है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है? तो आप लोग का क्या टारगेट होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट जो भी है उसके बेसिस पे, या तो आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो गया, है ना, सिमिलर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, या गेट का क्वेश्चन, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा आप लोग से क्वेश्चन, ठीक है, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, और वो सारे क्वेश्चन जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले टाइम देते हैं, ठीक है? 1 मिनट का टाइम है, जस्ट 1 लाइन का आंसर है इसका। आर का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू कितना ओम होगा? ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा, ट्रिपली से कितने लोग ज्वाइन किए हैं? आप लोग थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं क्या? या मैक्सिमम लोग सीएससी के ही हैं? ओके, ओके, तो नेटवर्क जो है हम लोगों का, जो ट्रिपली का जो आपका जितना भी कोर्स सब्जेक्ट आता है ना, अगर नेटवर्क स्ट्रांग हो गया है ना, तो नेटवर्क के साथ साथ आपका जितना भी कोर रहेगा ना, जैसे पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, ठीक है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हर जगह पे हम लोगों का बेसिक नेटवर्क्स का यूज है ना? तो अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया तो बाकी के जितने कोर सब्जेक्ट आगे के रहेंगे ना, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए नेटवर्क में। इवन आप रिसर्च लेवल पे भी जाओगे, अगर मास्टर्स करने भी जा रहे हो, है ना, तो वहाँ भी कोई भी बड़ा प्रॉब्लम अगर हम लोग को मिलता है तो बेसिक नेटवर्क से ही उसको सॉल्व करना होता है। तो ये आपका 1 नंबर में स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि ताकि आपका आगे वाला जितना भी सब्जेक्ट है वो इजी हो जाएगा।
किसी का वैल्यू आया क्या? रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? कोई सॉल्व किया? हेलो, किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर नहीं आया? किसी का आया हो तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, हम ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसको आइदर हम लोग केवीएल या केसीएल कुछ भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले केसीएल से सॉल्व करते हैं, हाँ? तो इसको हम क्या एज्यूम कर लिए? ग्राउंड एज्यूम कर लिए। कोई बताएगा इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा अगर इसको हम ग्राउंड एज्यूम कर लिए हैं? तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? वी कितना होगा? वी कितना होगा? कोई सॉल्व कीजिए, वी का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे कितना जा रहा है हम लोग का करंट? 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो 1 एम्पियर तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है। करंट हम लोग का कितना जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा? 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 वोल्ट, सही है। तो ग्राउंड से इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। V इक्वल टू 12 वोल्ट। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है? करंट निकालना है। इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? हाँ, आर्यन आपको डाउट है क्या? ओके, तो करंट कितना होगा? कोई बताएगा यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 1 यहाँ पे एम्पियर। हाँ, यहाँ पे 2 जा रहा है, इधर 1 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो अभी रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई I कितना है? 1 हो जाएगा, है ना। तो V1 हम लोग का कितना है? 12। तो 12 और इधर का वोल्टेज कितना हो गया इस पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 6। तो 12 माइनस 6 बाई 1 कितना हो गया हम लोग का? 6 ओम। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है, देखिए साइन कन्वेंशन का ही गेम है पूरा नेटवर्क में। अगर साइन कन्वेंशन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया एक बार, तो कितना टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। हेलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी यस तक? सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ध्यान से देखिएगा सब लोग। जस्ट हम नॉर्मल केवीएल केसीएल ही लगाने वाले हैं, अगर कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा, है ना। तो ये एक सर्किट है हम लोगों का, है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है? V1, V2 और V3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी रेफरेंस नोड दिया हुआ है। रेफरेंस नोड का मतलब क्या हो गया? जीरो पोटेंशियल, है ना। ये जीरो पोटेंशियल है। तो अभी हम लोग को क्या करना है? V1, V2 और V3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ग्राउंड से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ का वोल्टेज क्या है? V3 है। तो V2 को V3 के टर्म में लिखा जा सकता है क्या? हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा। V2 इज इक्वल टू V3 प्लस 10। ये सही है? ऐसे लिख सकते हैं। यहां से इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है? V2 है, और इसके बीच में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ग्राउंड से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल, हाँ, अटेंडेंस आप लोग का एक्सेल सीट में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक जो मेरा प्रीमियम जीमीट का आईडी है, तो वो पूरा एक्सेल सीट जनरेट कर देगा, किसने कब लॉग इन किया है, किसने कब लॉग आउट किया है, तो वो पूरा उस फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई 2 मिनट के लिए भी इन करेगा तो 2 मिनट का भी दिखाएगा कि इन टाइम ये है, आउट टाइम ये है, ठीक है। हाँ, ये सही है, ये क्लियर है सबको? V2 इजिकल टू V3 प्लस 10, सबको ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा हुआ है? किसी को डाउट है इसमें? यहाँ से ग्राउंड है, ग्राउंड से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V3 है। तो यहाँ का पोटेंशियल V2 है। इधर से हम लोग चल रहे हैं अगर ऐसे,
तो यहाँ V3 है, V3 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, केसीएल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस नोड पे हम केसीएल लगाएंगे और इस नोड पे केसीएल लगाएंगे, है ना? हाँ, यस। वॉइस इज नॉट ऑडिएबल, कैन अदर स्टूडेंट रिप्लाई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. You are clearly audible. वॉइस इज नॉट ऑडिएबल, नाउ इट इज ओके? Yes, sir. You are clearly audible, sir. Okay, okay. So I'm going to write the KCL at V1. Okay. So क्या है, बाहर का जितना भी करंट है उसका समेशन करना है। ओके, ठीक है। केसीएल और केवीएल सेम क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते आइडिया लगेगा कि कौन सा मेथड इजी है ना? दोनों मेथड से सेम क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन वो दिखता है कि यहाँ कौन सा मेथड इजी है, उसको फॉलो करना होता है। वो विजुअलाइजेशन से पता चल जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इजीएस्ट वे में कम वेरिएबल में किसको सॉल्व किया जा सकता है वो आपको पता चल जाएगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस या इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे केसीएल आसान है, ठीक है, तो हम केसीएल ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। इवन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, केवीएल प्लस केसीएल अगर यूज करेंगे तो ज्यादा इजीली बन जाएगा। तो अब जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड इजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका केसीएल इक्वेशन। 1 सेकेंड। तो नोड 1 पे केसीएल लिख रहे हैं। क्या मेथड हम क्या बताए थे, सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हम लोग का ब्रांच जा रहा है, बाहर की तरफ 4 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर की तरफ करंट कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना? इधर के तरफ यहाँ पे इधर की तरफ करंट लेना है और यहाँ पे 2 लेना है। ठीक है, तो ये -6 हो गया और यहाँ पे करंट, ये वाला करंट क्या हो जाएगा, तो एक एक करके लिख रहे हैं, -6। ठीक है, प्लस ये दूसरा वाला 5 ओम के थ्रू जो करंट जाएगा, प्लस V1 माइनस V2 बाई 5। ठीक है, फिर तीसरा वाला करंट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर है ये, तो प्लस 2 एम्पियर हो जाएगा, वो बाहर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, प्लस इधर की तरफ ये चौथा करंट कितना हो जाएगा, V1 माइनस V3 बाई 5 प्लस V1 माइनस V3 बाई 5। ये केसीएल इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes, Saurabh, maybe you have the internet issue, like other students are able to hear me. Audio is clear to all? Can any other student reply? Yes, sir. Okay, maybe Saurabh, you have the internet issue, that's why you are not able to hear. You can go in some network area, then you... Okay. So this is the first equation at node V1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा, क्या किया, सारे आउटगोइंग करंट के समेशन को क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो इधर 6 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आउटगोइंग में कितना जाएगा, -6। ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई 5, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बाहर की तरफ कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ पे बाहर की तरफ कितना जाएगा, V1, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का V3 है, तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3 बाई 5। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. ओके ओके, तो यहाँ से हम लोग V3 का वैल्यू 2 वेरिएबल में ला सकते हैं। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये हो गया। अब इस वाले नोड पे लिखते हैं, V3 पे लिखते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ कितना करंट जा रहा है, बाहर की तरफ यहाँ पे जा रहा है हम लोग का 3.5। यहाँ पे बाहर में कितना जाएगा, V3 माइनस 0/2, और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कोई बताएगा? इस वाले सेक्शन में कितना क्या होगा करंट, यहाँ पे 2 आ रहा है। V3 minus V2 by 10. नहीं, ये तो हम लोग का क्या है, वोल्टेज सोर्स है ना, तो वोल्टेज सोर्स को तो रेसिस्टेंस के जैसे नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था ना कि एक ब्लैक बॉक्स है हम लोगों के पास, अगर ठीक है एक ब्लैक बॉक्स है, तो यहाँ पे अगर 3 ब्रांच बाहर जा रहा है और यहाँ पे 3 अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इधर से जो करंट एंट्री मारेगा वो इसी 3 से बाहर निकलेगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रांच को हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है,
यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, ठीक है। तब यहां से आउटगोइंग करंट कितना हो गया, इसका और इसका और इसका, तीनों का आउटगोइंग करंट, और इधर का जो हो गया हम लोगों का ब्लैक बॉक्स का जो इस साइड है, इसका, इसका और इसका, ये तीनों का आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर है सबको? एक बार फिर से बता रहे हैं इसको। जैसे एक मान के चलो कि ऐसा हम लोग का दिया हुआ है, कुछ वोल्टेज सोर्स है, कुछ है जो भी, मान के चलो कि 10 वोल्ट है, जो भी है, इधर से 3 लाइन आ रहा है, ठीक है, और इधर से 3 लाइन आ रहा है। यहाँ पे I1 I2 I3 और यहाँ पे कुछ भी जा रहा है, इसे मान के चलो कि 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहा है, तो यहाँ पे 5 जा रहा है, यानी कि 3 2 5 5 10 जा रहा है। तो 10 भी इधर से बाहर जाना चाहिए। तो हम लोग का केसीएल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे सेम चीज है, बीच में एक वोल्टेज सोर्स है ना, बीच में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, इधर से 3 लाइन कनेक्टेड है, इधर से भी 3 लाइन कनेक्टेड है। तो ये तीनों का जो आउट गोइंग होगा, ठीक है, और ये तीनों का जो आउट गोइंग होगा उसका समेशन 0 होना चाहिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, so I'm just going to write the equation. One second. Just going to write the equation at V3 and V2. ठीक है, तो यहाँ और यहाँ दोनों मिला के हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 3.5 बाहर जा रहा है मेरा, कितना, 3.5। यहाँ पे बाहर कितना जाएगा, प्लस V3/2 इधर जा रहा है, ठीक है। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, प्लस V3 माइनस V1 बाई कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये तीनों करंट हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, ये तीनों करंट चाहिए, ये और ये। तो ये वाला कितना है, -2, इधर अंदर आ रहा है तो बाहर कितना जाएगा, -2। तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1/5 प्लस V2 माइनस V1/5, ठीक है। और तीसरा करंट हम लोग का कितना हो जाएगा, V2/1, ठीक है, प्लस V2/1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है सबको? 3 इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे हम, ये सी तीनों को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो V1 V2 और V3 पता चल जाएगा, ठीक है। Yes. ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक हम एक आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी, थोड़ा केवीएल के इसको, और भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग तो V1 V2 V3 पता करना है, उसके साथ पावर डिलीवर्ड भी निकालना है सारे सोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम कम है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, है ना। ये क्वेश्चन है, तो जैसे केवीएल और केसीएल का भी डाउट था कि कहाँ पे केवीएल यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग केसीएल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप लोगों ने पिछले का स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो है हम परसों के क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे और थोड़ा डिटेल में इसको केवीएल और केसीएल दोनों से करेंगे। मेरा टारगेट क्या रहेगा कि सेम क्वेश्चन को हम केवीएल से भी सॉल्व करें और केसीएल से भी सॉल्व करें, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा है, केसीएल इक्वेशन लिखा है ना। तो केसीएल से जो आंसर आएगा वही आंसर हम लोगों का केवीएल से भी आना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में हम लोग करेंगे, केसीएल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और केवीएल से भी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है सब लोगों को। तो इसको क्या निकालना है हम लोगों को, V1 V2 और V3 का वैल्यू निकालना है। जैसे नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, V1 V2 और V3। लेकिन अगर हम यहाँ पे केसीएल यूज करते हैं, ठीक है, केसीएल यूज करते हैं तो 3 नोड का हमको वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा, V1 V2 और V3। 3 वेरिएबल का इक्वेशन आएगा और सॉल्व करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इजी वे में क्या करेंगे, हम केवीएल का यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। V1 V3 पूछा गया है, तो यहाँ पे हम क्या है, कितना ix इधर जा रहा है, इधर 4 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, इस वाले में 3ix जाएगा,
क्लियर है सबको? यहाँ पे 4ix जा रहा है अंदर के तरफ, यहाँ नीचे कितना गया, ix गया, तो इस 3 ओम में कितना जाएगा, 3ix जाएगा। ये क्लियर है सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। जब इधर 3ix जा रहा है, इधर 4 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 प्लस 3ix। क्लियर है? तो ये 4 प्लस 3x यहां भी जा रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, जब 4 प्लस 3x जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा, इधर अगर हो गया तो कितना होगा, यहाँ पे 4 तो जाएगा ही, और क्या होगा, प्लस ix होगा, माइनस ix होगा, 4 माइनस ix होगा। क्लियर है? तभी तो अगर ये दोनों बाहर जा रहा है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, ये बाहर जा रहा है और ये 4 इधर जा रहा है, तो 4ix प्लस 4 माइनस ix कितना हो गया, 4 प्लस 3ix हो गया। ये क्लियर है सबको, कैसे कैसे करंट लिखे हैं हम सारे ब्रांच में। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4ix जा रहा है इधर के डायरेक्शन में, एरो दिख रहा है ना, इधर 4ix जा रहा है, नीचे ix जा रहा है, तो 3 ओम में कितना जाएगा, 3ix जाएगा, है ना। इधर ऊपर की तरफ 4 जा रहा है, इधर 3ix जा रहा है, तो इधर 2 ओम में कितना जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3ix। अब यहाँ पे हम लोग का कितना आ रहा है, 4 प्लस 3ix आ रहा है, यही ब्रांच सेम ही है ना। तो 4 प्लस 3ix जब इधर आ रहा है, इधर 4ix जा रहा है, तो नीचे कितना जाएगा, 4 माइनस ix जाएगा। क्लियर है सबको अब तक? Yes, हेलो, sir. ओके। अभी हम क्या करेंगे, हमको सारे ब्रांच में करंट पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग आप लोग क्या बताए थे कि रेजिस्टेंस में जिधर करंटर इंटर कर रहा है ना, करंट हम लोग का जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं उधर प्लस मानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इंटर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस मान रहे हैं, माइनस मान रहे हैं। यहाँ इधर इंटर कर रहा है ix, तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस मानेंगे, है ना। इधर इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही करना होता है हम लोग को, जिधर पहले तो करंट हम डिसाइड कर लिए, करंट के बाद क्या करेंगे, करंट जिधर एंट्री कर रहा है उसको प्लस लेना है, अपोजिट को माइनस लेना है। अब यहाँ पे हम लोग करंट क्या इधर आ रहा है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, सारा करंट हम दे दिए। अभी क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो केवीएल हम कहाँ लिख रहे हैं, इस वाले ब्रांच में लिख रहे हैं। देखिए जहां डॉटेड लाइन जाएगा ना, डॉटेड लाइन जिस ब्रांच में जा रहा है उसी ब्रांच में हम केवीएल लिख रहे हैं। अच्छा, केवीएल के लिए आपको वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स के क्रॉस केवीएल लिखते हैं, ये करंट सोर्स है, वोल्टेज नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, करंट को ही वोल्टेज मानेंगे। यहाँ वोल्टेज रहता तब हम लोग इस लूप में केवीएल लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। यहाँ 4 ओम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू आई एक्स, लेकिन माइनस साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं -4 आई एक्स, ठीक है, नीचे से। फिर ये 3 ओम में कितना जा रहा है, इधर की तरफ 3 आई एक्स जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 आई एक्स, ठीक है। फिर इस 2 ओम में आए हम, ठीक है, तो +2 इंटू 4 + 3 आई एक्स, ठीक है। 2 ओम के बाद फिर इधर आते आते आ गए 6 ओम में, तो क्या हो जाएगा, +6 इंटू 4 माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या हो गया, केवीएल इक्वेशन हो गया। क्लियर है सबको? तो हम क्या किए, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस पॉइंट से हमें स्टार्ट किए, ग्राउंड के पॉइंट से, इस 4 ओम के रेसिस्टेंस में गए, फिर 3 ओम के रेसिस्टेंस में गए, फिर 2 ओम के रेसिस्टेंस में आए, फिर 6 ओम के रेसिस्टेंस में आए, फिर यहाँ पे आ गए। तो हम लोग क्या हो गया, लूप कंप्लीट हो गया। क्लियर है सबको? इस इक्वेशन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबको क्लियर है यहां तक? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना फाइनल आता है। कितना होगा, -4 आई एक्स प्लस 9 आई एक्स प्लस 8 प्लस 6 आई एक्स, ठीक है, प्लस 24 माइनस 6 आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 6 आई एक्स और -6 आई एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 - 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 8 + 24 कितना हो गया, और 9 - 4 तो 5 आई एक्स। 5 आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 + 24 -32। दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा।
तो आई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू -32/5, ठीक है। आई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -32/5, आपका कितना हो गया -6.4, यानी कि आई एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, -6.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल आई एक्स हम लोग का जो है ना, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स हम लोग का यानी कि 6.5 एम्पियर एबव में जा रहा है। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। अब एक बार हम लोग को आई एक्स पता चल गया तो V1 V2 V3 पता चल जाएगा ना, ठीक है। V1 V2 V3 पता चल जाएगा। तो V2 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हम V2 निकालते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू -6.5, सही है। 4ix हो जाएगा ना, V2 क्या है हम लोग का 4ix है, तो ix का वैल्यू कितना आ रहा है -6.5, तो 4 इंटू -6.5 कितना हो गया, -26 वोल्ट आ रहा है क्या, 4 इंटू -6.5, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, -32/, ये 6.5 है, कुछ और है यहाँ पे, -32/5, 32/5, 6.4 है, ठीक है, ये -6.4 रहेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो 4 इंटू -6.4 कितना हो जाएगा, 25.6। तो ये कि हम लोग का V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -25.6, ठीक है। V3 कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 -ix, सही है। ये 6 है और इसमें करंट कितना जा रहा है हम लोग का, 4 -ix जा रहा है ना, तो 6 इंटू 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई एक्स ऑलरेडी हम लोग का निगेटिव है, तो 4 + 6 10.4 हो जाएगा ना, 6.4 + 4 10.6 इंटू 10.4 62.4 आ रहा है क्या। V3 का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 62.4। क्लियर है सबको? और हम लोग V1 निकालने गए, V1 क्या हो जाएगा, V1 का हम लिखते हैं अभी यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ड्रॉप हो रहा है ना, ठीक है, तो इधर 3ix इधर जा रहा है, यानी कि हम लोग का ऐसे जा रहा है, इसको ड्रॉ करते हैं अलग से हम, ये 2 रेसिस्टेंस हो गया हम लोगों का, ये कितना है, इधर ix जा रहा है, ठीक से, इधर 3ix जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ तो ये 4ix, ठीक है, इधर का इधर कितना हो गया, 4ix हो गया, और यहाँ कितना हो गया -9ix, तो हम लोग का V3 कितना हो जाएगा, 5ix हो जाएगा। V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5ix। क्लियर है सबको? ये V3 नहीं, V3 नहीं, V1, ये 1 है ना, V1 का वोल्टेज 5ix, तो 5 इंटू, नहीं एक सेकंड, -5 रहेगा ना, 4 - 9 -5, तो -5 इंटू 6.4 कितना हो रहा है, ये -6.4 होगा ना, तो 32 आ रहा है। क्लियर है? इसमें डाउट है तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, V1 का वैल्यू कैसे आ रहा है ठीक है, एक बार V1 को फिर से करते हैं। तो हम लोग का 2 रेसिस्टेंस में बटा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, इधर कितना है 3 ओम है, इधर 4 ओम है, यहाँ 3 ओम है, इधर 4 ओम है ना, और ये कितना जा रहा है हम लोग का 3ix जा रहा है यहाँ पे, इधर कितना जा रहा है 3ix जा रहा है, इधर हम लोग का नीचे कितना जा रहा है ix जा रहा है, ठीक है। तो इसको उस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे मान के चलो कि एक वर्चुअल हम लोग वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, है ना, एक वर्चुअल वोल्टेज V हम कनेक्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज V है, यानी कि वर्चुअल वोल्टेज हम V कनेक्ट किए हैं, तो इसमें KVL लिखेंगे इस वाले लूप में, ठीक है। तो -V और इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, तो इधर हो जाएगा -V
और ये वाला क्या हो जाएगा -9ix, ठीक है, प्लस 4ix इज इक्वल टू 0। तो v का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, -5ix हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो कितना हो जाएगा, -5 इंटू -6.4। आई का वैल्यू हम लोग का कितना था, 6.4। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 32 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हमने क्या एनालाइज किया कि हमको यहाँ पे केवीएल आसान लग रहा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में केसीएल से भी बताएंगे, तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी होगा। किस तो आप लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उसके हिसाब से आइडिया आ जाएगा कि केवीएल इजी है या केसीएल इजी है या दोनों का कॉम्बिनेशन इजी है, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि आप जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर इस टाइप के क्वेश्चन है केवीएल केसीएल से रिलेटेड या पावर डिलीवर्ड या पावर ऑब्जॉर्ब, ठीक है, अभी ये पीडीएफ भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे इसका, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके ट्राई कीजिए, है ना। या गेट का भी प्रीवियस ईयर आप लोग सिंपल केवीएल केसीएल वाला ट्राई कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है, उसको मार्क करके रखना है और जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में सेंड कर देना है। तो फिर उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, फिर अब तक किसी को डाउट है तो पूछिए यहाँ तक। तो परसों के क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। मेरा टारगेट ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए और कैसा भी नेटवर्क का क्वेश्चन आए तो उसमें डर नहीं लगे कि साइन कन्वेंशन लेना है, क्या लेना है। एक अगर आप लोग पूरा क्लास अगर अटेंड करते हो मेरा, है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहे तो सॉल्व हो जाएगा। हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और सेम क्वेश्चन को 2-3 मेथड से भी बताएंगे, है ना। तो वो आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड इजी है, किस वे में इजी में जाना है। हाँ, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप लोग का पूछता है तो वो मेथड पूछेगा केबीएल से करना है या केसीएल से करना है, तो उस केस में आपको जो मेथड पूछता है उसी मेथड से करना है ना। तो आप लोग गेट या यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कलेक्ट करके भी ग्रुप में सेंड कर सकते हो, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर तो परसों के हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं 7:30, हाँ 7:30 to 9। ओके ओके, तो थैंक यू ऑल।